we have our NBFC by the name Best Funds, which is into very innovative and new comprehensive credit solutions for raw material procurement financing. These are the key product categories which Power to SME deals in: steel, polymer, paints, yarn, chemicals, and there are several others. The major industrial segment that we cater to includes auto components, electronics, engineering, infrastructure is coming up very fast, plastics, and there are several others. These are our competitive advantage that Power to SME offers to its clients. We are an invested company. Some of the most reputed venture funds in the country have invested in us: Inventors, Kalari, Excel. Mr. Nandan Nilekani is one of our strategic investors. We are also funded by World Bank through its financial arms, the International Finance Corporation. These are the few awards and accolades that we have won since our inception. And this is our social media presence. Any of you wanted to know more about our services can get in touch through any of these mediums. And the co-partner for this webinar is a Confederation of All India Traders. We have Mr. Praveen Khandelwal representing the Confederation. Still, let me give you a very brief introduction. It was established in year 1990. CAIT has been consistently advocating the voice and interest of trading community in India, with a mission to render the best possible assistance to the traders and also to communicate with administrators to redress the legitimate grievances of traders and to impart education to the trading fraternity to upgrade their performance to the most satisfactory service, alongside lending full cooperation to the government in streamlining existing policy framework. And this was just the brief about the organizers of this webinar. I would now request Dr. H.P. Kumar to kindly take over the session and begin the discussion. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Mr. Zubair. I think with this brief introduction that you gave, we can start this program. In fact, the major discussion that we are going to have is about the traders and the trading community, which has been included recently in the definition of MSMEs. It has been a remarkable achievement. I would like to compliment again, in fact, Mr. Praveen Khandelwal ji. He has been a pioneer and a stalwart in the trading sector, and particularly leading from the front this Confederation of All India Traders. He has a tremendous, networking and a great name in the ministry and all around in the country, with thousands and thousands of people associated with this Confederation of All India Traders Association. So congratulations, Praveen ji. Thanks for being with us today. We are going to discuss not only the the success that you have achieved in including this traders community in the MSME sector. इसके अलावा भी हम जो issues हैं कि traders को ट्रेडिंग सेक्टर को एमएसएमई में लाने में कुछ फायदे हुए, तो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नुकसान हुआ हो. दैट इज वन थिंग. दूसरी बात, और इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है उसके अनुसार उन्होंने ट्रेडिंग सेक्टर को एमएसएमई डेफिनेशन में केवल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए अभी इंक्लूड किया है. मेरा मानना यह है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इंक्लूड करना एक बहुत ही अच्छा वे फॉरवर्ड है, बहुत अच्छा स्टेप है, परंतु और भी कई एरियाज हैं इसके अंदर ट्रेडिंग सेक्टर को एमएसएमई की जो सुविधाएं हैं, एमएसएमई को जो मिल रही हैं, वो प्रदान की जा सकती हैं. तो हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे. हम जानना चाहेंगे आपसे नेचुरली कि और क्या इश्यूज हैं, पर इससे पहले मैं कुछ एरियाज के ऊपर अपने व्यूज बताऊं. तो मेरा ये मानना है कि पहली बात तो यह है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ने जो लिया है, क्योंकि ट्रेडिंग सेक्टर अदरवाइज कहीं पे इंक्लूडेड नहीं था, कोई पॉलिसी में कवर्ड नहीं था.
हम लोगों ने कोशिश की, पहले 2 साल पहले भी हमारी मीटिंग्स हुई गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमने खंडेलवाल जी से संपर्क भी किया था कि हम ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, ट्रेडिंग सेक्टर के लिए किस तरह से डेफिनेशन बनाएं और उनको उस डेफिनेशन के बेसिस पे किस तरह से हम जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या सुविधाएं हैं वो प्रदान कराई जा सके, जैसे कि एमएसएमई सेक्टर के लिए किया गया। और ट्रेडिंग सेक्टर के लिए कोई अगर लॉ लाने की जरूरत है या कोई ऐसे लीगल प्रोविजंस जो उनको प्रोटेक्शन दे सके, पर्टिकुलरली स्मॉल ट्रेडर्स को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्मॉल ट्रेडर्स ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे। पर्टिकुलरली ये जो ई कॉमर्स जायंट्स आ गए बड़े बड़े, तो स्मॉल ट्रेडर्स जो थे, जो गली गली मोहल्लों में छोटे छोटे दुकानदार के रूप में काम कर रहे थे, रिटेल ट्रेड के रूप में, उनको बहुत इससे असर पड़ा। तो हमने कोशिश की थी इसके बारे में, और मेरा ख्याल है प्रवीण जी सहमत होंगे कि ये जो इंक्लूजन है एमएसएमई सेक्टर में, ये उससे भी अच्छा हुआ। परंतु आवश्यकता है कि हम इसमें अधिक से अधिक और सुविधाएं ट्रेडिंग सेक्टर को प्रदान करा सकें। फॉर example, let me take the priority sector lending. I was looking at the priority sector allocations, in fact, of the Reserve Bank of India guidelines. I found that ever since inception, पता नहीं प्रायोरिटी सेक्टर शायद 1972 से शुरू हुआ, जब से प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन शुरू हुआ तब से ये 40% पे ही है, जबकि इसके अंदर एक के बाद एक सेक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं। पहले ये खाली स्मॉल ट्रेडर्स, पहले जो शुरू में हुआ था, मुझे ध्यान है कि इसके अंदर स्मॉल ट्रेडर्स भी शामिल थे, रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स भी शामिल थे, स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, और इसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता था उसमें, एसएसआई, वो भी शामिल था। परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल ट्रेडर्स हट गए और एमएसएमई की डेफिनेशन नई आ गई, जो कि एक एक्ट के अनुसार आई, 2006 का एक्ट जो बना। तो प्रायोरिटी सेक्टर में 40% का जो एलोकेशन रखा गया था शुरू से, वो 40 ही चल रहा है अभी तक। और उसके अंदर देखिए सेक्टर्स कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर सारा उसके अंदर है, एग्रीकल्चर लेंडिंग सारी प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होती है। एमएसएमई लेंडिंग सारी प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होती है। पहले मीडियम नहीं होता था, वो मीडियम भी शामिल हो गया है। तीसरा, एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल होती है। अब आप इनके अगर कंट्रीब्यूशन लगाएं जीडीपी को, तो कम से कम 30% कंट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, वो तो एमएसएमई सेक्टर का ही है। 30% टू जीडीपी। एग्रीकल्चर का 15%, आप 15-16 लगा लीजिए, 16% है। हालांकि रिसेंट फिगर्स में देख रहा था, इट इज क्लोज टू 18%। अगर आप प्राइमरी सेक्टर देखें, फिशरीज और फॉरेस्ट्री ऐड कर दें उसमें, तो 18% कंट्रीब्यूशन हो जाता है एग्रीकल्चर का। तो 18 प्लस 30 एमएसएमई सेक्टर 48 हो गया, एग्रीकल्चर और एमएसएमई मिला के। इसके अलावा जो ऐड किया गया पिछले कुछ सालों में, एजुकेशन लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल कर लिए गए। हाउसिंग लोन्स 30 लाख रुपए तक, मेरा ख्याल है 30 लाख हो गई लिमिट अब, ये सारे हाउसिंग लोन्स इसमें शामिल कर लिए गए। अब हाउसिंग सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देखें, अब 5% तो लगाएंगे कम से कम जो आता है, तो 48 प्लस 5 53। एक्सपोर्ट क्रेडिट का कम से कम 5% कंट्रीब्यूशन है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट को मिलाएं तो हेलो आर यू एबल टू हेयर मी? हाँ जी। अच्छा, मेरा कुछ सिस्टम में कुछ सामने कुछ डिफरेंट आ गया, तो मुझे लगा कि कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी। अभी तक आपने ऑलमोस्ट 68% गिना दिया। 58 गिना दिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट को शामिल कर लें 5%, तो 63 होगी। 63 होगी। अब मुझे ये बताइए कि इसमें रिटेल को हम शामिल करते हैं, रिटेल को शामिल करते हैं, सॉरी 17% आप रिटेल को शामिल कर लीजिए, तो 63% और 17% मिला के हो जाता है 80%। तो 80% आप कैटेगरीज को तो ले आए प्रायोरिटी सेक्टर में, जबकि एलोकेशन वही 40 का 40 ही है। तो अब हमारा पॉइंट ये है कि अगर 40% एलोकेशन इन सारे सेक्टर्स के लिए है, ट्रेडिंग भी, एक्सपोर्ट लेंडिंग भी, एमएसएमई सेक्टर भी सारा, और एग्रीकल्चर भी सारा उसके अंदर है, हाउसिंग भी शामिल कर लिया, एजुकेशन भी तो फिर बचा क्या? केवल लार्ज इंडस्ट्रीज या लार्ज कॉर्पोरेट्स या इंडस्ट्रीज।
तो उनके लिए 60% और इनके लिए 40%, ये सारे सेक्टर्स के लिए। तो पॉइंट ये है, मेरा व्यू है ये, खंडेलवाल जी इसको नोट करिएगा और आपका व्यू भी इस पे मैं जानना चाहूंगा कि 40% को बढ़ाना चाहिए। हम प्रायोरिटी सेक्टर में रिटेल ट्रेड को लाने का फायदा तभी उठा सकते हैं कि अगर आप केक को बड़ा करिए ना, वो केक तो साइज तो उतना ही है, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं उसमें, तो केक का साइज भी बढ़ाने की जरूरत है। इस 40 को जीडीपी का कंट्रीब्यूशन के अनुसार, ये जितने सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल किए गए हैं, इनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के अनुसार प्रायोरिटी सेक्टर का एलोकेशन पुनः निर्धारित होना चाहिए, रीफिक्स होना चाहिए। एक तो ये इशू है जो कि मुझे लगा कि मुझे इस समय कहने की आवश्यकता है। दूसरा, रिटेल ट्रेड को केवल, रिटेल ट्रेड और ट्रेडिंग सेक्टर को केवल क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है, और भी एरियाज हैं जिसमें रिटेल ट्रेड और ट्रेडिंग सेक्टर को हेल्प की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में 25% आप कहते हैं कि हम एमएसएमई सेक्टर से लेंगे। जितना भी गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है, मेरा एस्टिमेट है कि लगभग 6-7 लाख करोड़ रुपए साल का है, इससे ज्यादा ही होगा। और इसका 25% अगर आप लेते हैं, 6-7 लाख करोड़ रुपए 25% के बराबर है। टोटल प्रोक्योरमेंट तो बहुत ज्यादा, 25 लाख करोड़ रुपए। तो 6 लाख करोड़ रुपए अगर आप प्रोक्योर करते हैं एमएसएमई सेक्टर से, तो एमएसएमई सेक्टर में रिटेल ट्रेड से प्रोक्योर करने का भी कुछ टारगेट होना चाहिए, ताकि ये ट्रेडिंग कम्युनिटी भी उसका फायदा उठा सके। आप चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दीजिए, आप उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फिक्स कर दीजिए, आप उनसे ये कहिए कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपने जेम में, जैसे जेम में आपने ट्रेडर्स को, ट्रेडिंग सेक्टर को एलिजिबल बनाया हुआ है कि जेम में वो रजिस्टर कर सकते हैं, परंतु वो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए या वो ऑथोराइज्ड रीसेलर्स होने चाहिए। अब ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑथोराइज्ड रीसेलर्स के अलावा भी बहुत सारे ट्रेडिंग एरियाज हैं, ट्रेडिंग सेक्टर में लोग लगे हुए हैं जो कि बहुत ही जेन्युइन अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर वो एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। तो इसमें कुछ पॉलिसी का बेनिफिट ट्रेडिंग सेक्टर को भी इसमें मिलना चाहिए। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, अब जमाना है डिजिटाइजेशन का, क्योंकि ई कॉमर्स के लोग तो पूरा सब कुछ, बड़ी कंपनियां हैं, सब कुछ डिजिटल बना के और इतना एफिशिएंटली वो सप्लाई चेन को मैनेज कर रही हैं कि हमारे छोटे रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड के लिए या ट्रेडिंग सेक्टर के लिए उसको मैच कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये प्रवीण जी अभी कह भी रहे थे। और हमें उसको, अगर अपने सेक्टर को, अपने रिटेल ट्रेड और ट्रेडिंग सेक्टर को इक्विप करना है और कॉम्पिटेंस देनी है, तो हमें उनको भी डिजिटाइजेशन के माध्यम से इक्विप करना होगा। और इसके लिए मेरा व्यू ये है कि डिजिटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम आए, क्योंकि इतनी स्कीमें एमएसएमई सेक्टर के लिए हैं। और डिजिटल इंडिया तो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अगर हमारे 2.5 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स, होलसेल ट्रेडर्स या ट्रेडिंग सेक्टर के लोग अगर डिजिटल के माध्यम से जुड़ जाएंगे और अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे, तो अल्टीमेटली कंट्री का फायदा होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है, बॉटम लाइंस बढ़ने वाली है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ने वाला है। ये सारे फायदे होने वाले हैं अगर हम डिजिटाइजेशन के माध्यम से ट्रेडिंग सेक्टर को कुछ हेल्प करें। उनको कम से कम इतना ही हेल्प कर दें कि उनका एक इक्विपमेंट लगवा दें, उनकी बिलिंग ऑटोमेटेड हो जाए, उनकी कोई कंप्लेंट्स का सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाए, उनकी जो परचेजेस और सेल्स हैं और जो फाइनेंशियल बुक्स हैं वो एक छोटे ईआरपी से, ईआरपी 10,000 रुपए का आता है, ज्यादा कोई बड़ा ईआरपी भी नहीं है। तो ये डिजिटाइजेशन की हेल्प हम उनको, रिटेल ट्रेड के छोटे लोगों को, 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ कम नहीं होते, और इनको ये हेल्प हम कराएं। एक और पॉइंट इससे पहले कि मैं प्रवीण जी को इनवाइट करूं, वो ये है कि जीएसटी में सुधार की आवश्यकता है ट्रेडिंग सेक्टर के लिए भी। वो अक्रॉस द बोर्ड है। जैसे 40 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, मेरे विचार से इसको और ऊपर ले जाने की जरूरत है और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम से कम 1 करोड़ रुपए करने की आवश्यकता है। 40 लाख को अगर 1 करोड़ कर दिया जाए,
आपका, और इसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे भी लाया जा सकता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे भी कवर किया जा सकता है। तो एग्जेम्पशन, और उससे बहुत अधिक लॉस नहीं होने वाला, इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो एक ये, दूसरी बात ये रिटर्न्स और प्रोसीजर्स जो हैं, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं स्टेट्स में, ये भी थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। तो ये कुछ एरियाज हैं। एक और एरिया है इंटरेस्ट सबवेंशन का। 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, जो शायद 31 मार्च 2020 को पूरा हो गया। तो एमएसएमई सेक्टर की लाइंस पर ट्रेडिंग सेक्टर के लिए भी कोई फंडिंग स्कीम जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी हो, वो भी एक स्कीम ला के ट्रेडिंग सेक्टर को भी इसका बेनिफिट देने की जरूरत है। तो ये कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वालिटी अपग्रेडेशन की स्कीम लाइए, उनके लिए डिजाइन की स्कीम दीजिए या मार्केटिंग की स्कीम दीजिए, वो सारी स्कीमें एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है, वो ठीक है। बट एटलीस्ट फ्यू एरियाज वेयर trading sector can benefit substantially and is directly, directly can be helped. These few areas which I mentioned can be considered by the government. So we will continue to talk. हम डिस्कस करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि अब प्रवीण जी हमारे साथ अपने विचार रखें और अपने एरियाज को मेंशन करें। और मेरे विचार से तो ये बहुत ही मतलब जिसको कहेंगे कि एक बहुत ग्रेट वेलविशर है रिटेल सेक्टर के, और बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। तो और क्या क्या एरियाज हैं जिसपे रिटेल ट्रेडिंग सेक्टर की एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट के ध्यान में लाई जा सकती है। ओवर टू यू प्रवीण जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार आपका, और पूरे देश के व्यापारियों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत सधे शब्दों में व्यापारियों की वास्तविक स्थिति का बयान किया है। इससे ये अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है कि आपने अपने कार्यकाल में जहां भी आप रहे, आपने निश्चित रूप से वहां पर स्मॉल ट्रेडर्स को एम्पावर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, निश्चित रूप से वो सारे बिंदुओं को सरकार को बहुत गहराई के साथ समझना होगा। लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले एक फिगर को मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो 2.5 करोड़ की फिगर है, ये 2.5 करोड़ की फिगर एमएसएमई यानी हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज की फिगर है। एनएसएसओ ने 2016 में रिटेल ट्रेड का सर्वे किया था, और उन्होंने उस समय 6 करोड़ 70 लाख व्यापारी देश में काम कर रहे हैं, ये फिगर आई थी 2016 में। और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो एवरेज ग्रोथ है पर ईयर, वो लगभग 10 से 12% है। तो और जो सर्वे हमने इंटरनल कराए हैं पूरे देश भर में, तो वर्तमान में देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं जो लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और एनुअल जो उनका टर्नओवर है वो लगभग 115 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर है। इस पूरे टर्नओवर को देश भर के व्यापारी कंट्रीब्यूट करते हैं देश की इकोनॉमी में। और एक फिगर जो हमें इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 8 करोड़ व्यापारियों में से केवल 5% व्यापारी ऐसे हैं जिनको बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलता है। बाकी के 95% व्यापारी इनफॉर्मल सोर्सेज से पैसा लेते हैं। और ये समझना हमें मुश्किल नहीं है कि अगर पैसा इनफॉर्मल सोर्स से आएगा तो उसका डिसबर्सल भी इनफॉर्मल ही होगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो देश में एक इनफॉर्मल इकोनॉमी भी बहुत उसी साइज की चल रही है, जिसको हमें कर्टेल करने की जरूरत है, और उस इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल में लाने की जरूरत है। और उसके लिए अगर हम व्यापारियों को आसानी से फॉर्मल लेंडिंग करा दें, तो मेरा ये निश्चित मत है कि हमारी जो जीडीपी जिसको हम बोलते हैं डबल डिजिट की जीडीपी हो जाए, वो वर्तमान में डबल डिजिट से ज्यादा की जीडीपी है। तो एक तो मैं ये कुछ फिगर यहाँ पर करेक्ट करना चाहता था।
प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में डॉक्टर साहब आपने बहुत सही आपने कहा कि 40% है, लेकिन 70% के लगभग के लोग हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि लगभग 70-30 का रेशो होना चाहिए। 70% नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, 30% कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, क्योंकि बावजूद इस तथ्य के कि कॉर्पोरेट सेक्टर को पिछले 15-20 वर्षों में जितना सरकार ने सपोर्ट किया है, उस सपोर्ट के बाद भी कॉर्पोरेट सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है दैट इज समवेयर नियर 15%, 1.15 यानी 15% उनका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर 50% कंट्रीब्यूशन को 30% हम देते हैं तो कोई उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे। बाकी 70% का कंट्रीब्यूट करने वाले को हम 70% दे रहे हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं इवन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि पीएसएल को 40 से बढ़ा करके 70% किया जाना चाहिए। उससे कम से कम जो जितने वर्टिकल्स है उसके अंदर, उन सारे वर्टिकल्स को पैसा मिल सकेगा। तो मेरा एक तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से कहना है। दूसरा, आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन, निश्चित रूप से पीएसएल के लिए खाली एमएसएमई का दर्जा लेना हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमने ये कहा कि जो मिल रहा है पहले वो तो ले लो। इसके अलावा जैसे आपने बहुत सही तरीके से कहा कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का लाभ हमको मिलना चाहिए। इसके अलावा एमएसएमई एक्ट में जो कानून है कि सरकारी संस्थानों को जो हम मटेरियल सप्लाई करते हैं, यदि वो 45 डेज में पेमेंट नहीं करते तो उनके ऊपर ट्रिपल इंटरेस्ट लगता है। तो ये सुविधा भी हमारे व्यापारियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में हमारे देश के व्यापारी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स को, पीएसयूज को, बैंकों को और इसी प्रकार के अन्य इंस्टीट्यूशंस के सप्लाई का जरिया बनते हैं, और आज उनकी पेमेंट्स लगभग 90 दिन 120 दिन से पहले आती नहीं है सरकारी संस्थानों से, और उसमें भी बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाकर के वो पेमेंट आती है। तो हमें एक ऐसा रूट डेवलप करना चाहिए जिसमें जिस रूट के अंतर्गत डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरवेंशन 45 दिन के अंदर अंदर जैसे एमएसएमई के और सेक्टर्स को पैसा मिल सकता है, उसी प्रकार से वो पैसा भी हमको मिल जाए, तो ये एक बड़ी बात होगी। डॉक्टर कुमार ने एक बात जो बहुत अच्छी कही कि उसमें हम जब हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो फिलहाल या जैम पर भी जो अभी रजिस्ट्रेशन होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर को हमने वहां लिखा है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं, या सबसे ज्यादा मात्रा में ऐसे लोग हैं जो लोकल लेवल के ब्रांड्स बनाते हैं, जो लोकल लेवल पर काम करते हैं, और उनके लिए किसी बड़े ब्रांड की तरीके से उनके पास ना सुविधाएं हैं, ना उतना स्ट्रक्चर है, ना उनके पास उतने रिसोर्सेज है। तो उन बड़े वो जो छोटे ब्रांड है वो वास्तव में हमारी इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। तो छोटे ब्रांड्स को भी कैसे वहां पर रजिस्टर किया जाए, तो उसमें से ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो क्लॉज है, इस क्लॉज को कहीं ना कहीं हम लोगों को उसको रिकंसिडर करके हर वो व्यक्ति जिसकी केवाईसी स्ट्रांग हो जाए, मैं निश्चित रूप से केवाईसी पर कोई समझौता नहीं करूंगा। जो भी केवाईसी बने कि आप उसमें आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए या कुछ और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए जाए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की जगह पर किसी भी प्रकार का ट्रेडर कोई भी कमोडिटी के लिए यदि अप्लाई करता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए, ये ऐसा मेरा निश्चित रूप से मत है। जहां तक ट्रेडर्स के डिजिटलाइजेशन का सवाल है, ये बात हमने लगातार जीएसटी से पहले से हम उठा रहे हैं, और हम लोगों ने पूरे देश में पिछले 5 सालों में कैंपेन चलाया। उस कैंपेन में लगभग 35% व्यापारियों को हम अभी तक कंप्यूटराइज कर पाए हैं, यानी कि 8 करोड़ व्यापारियों में से केवल 35% ये भी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं।
65% का कंप्यूटर को के साथ जोड़ना निहायत ही जरूरी है ऐसे समय में जब सरकार के सभी गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि कॉम्प्लायंस इजी हो, कॉम्प्लायंस ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके लिए हमें ट्रेडर्स को डिजिटाइज करना पड़ेगा। और हमने उसके लिए सरकार को 2 सुझाव दिए थे। एक सुझाव तो यह था कि डिजिटाइजेशन के लिए हमारे व्यापारी को एक कंप्यूटर चाहिए, उसके साथ में एक प्रिंटर चाहिए या कुछ थोड़ा बहुत, तो टोटल जो कॉस्ट बैठती है वो लगभग 60,000 रुपए या 70,000 रुपए के आसपास बैठती है। हमने सरकार को ये कहा कि 50% तो उसमें सब्सिडी सरकार दे दे और बाकी 50% के लिए बैंकों को ऑथराइज कर दिया जाए कि कोई ट्रेडर यदि बाकी के 50% नहीं लगा पाता है, क्योंकि जब डॉक्टर कुमार आपने कहा शुरू में गांव, कस्बे, रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरियाज, उनको जोड़ना जरूरी है, टियर 4, टियर 3 को जोड़ना जरूरी है, तो वहां निश्चित रूप से जो व्यापारी काम कर रहे हैं उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो कंप्यूटर खरीदने के भी पैसे दे सके। तो अगर हम उनको 50% गवर्नमेंट सब्सिडी दे और रिमेनिंग 50% बैंकों से इंस्टॉलमेंट बनवा दी जाए तो बहुत जल्दी हम पूरे देश के व्यापारियों को कंप्यूटराइज कर पाएंगे। उसका एक लाभ ये होगा कि सरकार का जो टैक्स बेस है जीएसटी में भी और इनकम टैक्स में भी वो प्रोपोर्शनली बहुत बढ़ जाएगा। और अगर टैक्स बेस बढ़ गया तो सरकार का रेवेन्यू, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सबका रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा, जब जीएसटी की बात चल रही थी 2004-5 के अंदर, 6 के अंदर, तो मैं उस हाई पावर्ड कमेटी में था, तो मैंने ये सुझाव दिया था कि जब हम जीएसटी दे तो हम एक बहुत सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फ्री दे दें। और वो सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अवेलेबल हो, उसको वहां से कोई भी व्यापारी उसको अपने यहाँ पर लोड कर सकता है। और वो यदि सिंप्लीफाइड सॉफ्टवेयर हमने दे दिया तो व्यापारी को बाजार का जो सॉफ्टवेयर है 10,000 रुपए का या 20,000 रुपए का, अब यूं तो अगर मान लीजिए मेरे जरूरत है, मेरे मल्टी पॉइंट सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, आई कैन अफोर्ड, मैं बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन ले सकता हूँ, मैं अपनी खुद का सोल्यूशन बनवा सकता हूँ। लेकिन अगर हम एवरेज व्यापारी को देखें तो एवरेज व्यापारी को डिजिटलाइज रूप से अकाउंटिंग करने के लिए एक सिंप्लीफाइड सॉफ्टवेयर यदि फ्री में दे दे सरकार, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजन, सरकार अगर ऐसा करेगी तो सरकार को उसका फायदा होने वाला है। सरकार का डाटा बैंक बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार को और जो स्कीम्स देनी होती है वो डीबीटी के माध्यम से उन ऐसे व्यापारियों को दी जा सकती है। तो मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। और डिजिटाइजेशन को लेकर के हम पूरे देश भर में एक प्रोग्राम चलाते हैं, रिटेल स्कूल। उस रिटेल स्कूल को हम हर शहर में चला रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से। हम लोकल फैकल्टी हायर करते हैं और हमारी एसोसिएशंस के जो ऑफिसेज है जिसमें 30 के बैठने की संख्या है, किसी में 50 की है, किसी में 100 की है, हम वहीं पर ट्रेडर्स को बुलाते हैं। 4 घंटे के सेशन में हम उनको रिटेल स्कूल के जरिए बताते हैं कि डिजिटाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन क्यों जरूरी है, टैक्स को समय से कंप्लाई करना क्यों जरूरी है, दुकान की सेफ्टी रखना, उसमें कैमरे लगाना क्यों जरूरी है, आपके बिजनेस में शेल्फ लाइफ का क्या महत्व है वो बताना, हम उनको वो भी बताते हैं। हम ये भी बताते हैं कि डेड इन्वेंट्री और रनिंग इन्वेंट्री का क्या अंतर होता है। हम जिस भारत की मार्केट पर सेल थी, इस साल जून में तुम्हारी ये सेल है, अगर कम है तो क्यों कम है, ज्यादा है तो क्यों ज्यादा, उसको और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के कोशिश कभी भी देश के रिटेल ट्रेड के लिए किसी ने नहीं की, बस हम इसको करने जा रहे हैं। जहां तक जीएसटी का सवाल है डॉक्टर कुमार, मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि जीएसटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द लैंड। जो बार बार ये बात कही जाती है कि 1 नेशन 1 टैक्स, वो बिल्कुल नहीं है। जीएसटी को कहते हैं कि गुड्स एंड सिंपल टैक्स, वो बिल्कुल नहीं है। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो गया। और जिस जीएसटी की कल्पना की गई थी शुरू में, जो उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने हमको जीएसटी बताया था, जो प्रेजेंटेशन उन्होंने हमें दी थी,
उस प्रेजेंटेशन में, उस विजन में और वर्तमान के इसके अंदर जमीन आसमान का अंतर हो गया। इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने जीएसटी काउंसिल में बैठ करके अपने रेवेन्यू को देख करके जीएसटी में डिस्पैरिटी और डिस्टॉर्शन इतने सारे ले आए, जो इससे पता लगता है कि 4 साल में 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट जीएसटी में हो गए। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी टू इट, माई ट्रेडर हैज नॉट गॉट ए राइट टू रेक्टिफाई हिज रिटर्न इवन फॉर वंस। अरे ह्यूमन क्या नाम है, हम जब पर काम करते हैं, ह्यूमन एरर हो सकती है। एक जीरो यदि बढ़ गया तो मेरे पास कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं दोबारा उसको रेक्टिफाई कर लूं। तो मेरा सारा जो असेसमेंट होगा वो उस पर होगा, बाद में मैं कितनी क्लैरिफिकेशन देता रहूं। और अब तो क्योंकि वो फेसलेस असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट हो गया, तो कितना बड़ा अन्याय उस व्यक्ति के साथ आप कर रहे हो। अरे भाई, कम से कम एक बार तो उसको अपनी रिटर्न को अमेंड करने का मौका तो दो। बट हमारे पास कोई मौका ही नहीं है, जबकि सरकार 1000 अमेंडमेंट कर सकती है। अरे तो आपने क्यों किया अमेंडमेंट? क्योंकि जरूरत थी। तो अगर मुझे क्यों नहीं मिल रहा, जिसकी जरूरत मेरी भी है। तो ये जो कुछ ग्लिचेस है, पोर्टल आज भी, जीएसटी का पोर्टल आज भी स्टेबल नहीं है। जिस दिन थोड़ा सा लोड पड़ता है पोर्टल बैठ जाता है। तो कोई पूछे कि इन्फोसिस को इतना सारा पैसा दिया, दद्दर नीलकेनी को हमने एडवाइजर बनाया, उसके बाद में हमको क्या मिला है? 4 साल में यदि हम भारत सरकार का जीएसटी का पोर्टल भी अगर हम नहीं बना पा रहे हैं, तो किस जीएसटी की हम बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल है जिस पर हमें चर्चा करनी होगी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आज व्यापारी, आज रिटेल ट्रेड पर लगभग 28 तरीके के लाइसेंस हमको लेने पड़ते हैं, 28 तरीके के। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने हमारी बात को माना कि 28 लाइसेंस खत्म करके 1 लाइसेंस होना चाहिए। उसके ऊपर काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार बहुत जल्द वो 1 लाइसेंस स्कीम लेकर के आएगी, जिसमें रिन्यूअल 10 साल के बाद होगा। ईयरली रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। आज इतने सारे लाइसेंस, और वो दे दिए, कॉर्पोरेशन का लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का अलग लेना पड़ेगा, शॉप एस्टेब्लिश का अलग लेना पड़ेगा, ड्रग का लेना पड़ेगा, फूड का काम करता हूँ फूड का लेना पड़ेगा, रेस्टोरेंट काम करता हूँ तो एक और लाइसेंस लेना पड़ेगा, सैनिटरी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, पॉल्यूशन का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है हमारे देश के अंदर। आज अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलना चाहे, सरकार की इकोनॉमी में सहयोग करना चाहे, तो जब तक उसकी स्टेज आती है दुकान खोलने की, तब तक डॉक्टर कुमार, वो व्यक्ति पूरी तरीके से पस्त हो चुका है, या तो फिर वो गलत रास्ते अपनाता है। तो हम क्यों नहीं पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आपने कहा कि जीएसटी में थ्रेशोल्ड 1 करोड़ होनी चाहिए। मैं पूरी तरीके का स्वागत करता हूं। जब हम हर साल हमारे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाते हैं प्राइस इंडेक्स को देख करके, तो हमें यह भी समझना होगा कि अगर मान लीजिए 40 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट 4 साल बाद 4 साल पहले लगी थी, 4 साल में रुपए कितना डिवैल्यू हो गया, तो उसके प्रोपोर्शन में हमें कहीं ना कहीं इस थ्रेशोल्ड लिमिट को भी बढ़ाना पड़ेगा, या बिल्कुल थ्रेशोल्ड खत्म कर दो। आप थ्रेशोल्ड की जरूरत ही नहीं है। जो आदमी को उसको आप आधार नंबर से कहोगे, आधार नंबर दोगे, कार के स्कैनर पर होना चाहिए, किसी ना किसी एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सरकार तो कुछ पूछे कि देश में कितने व्यापारी काम कर रहे हैं, तो सरकार कंप्यूटर देख करके बता सके कि 8,31,929,340 व्यापारी देश के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, क्योंकि हमने कभी व्यापारियों को अपनी प्रायोरिटी पर नहीं रखा। ये तो पिछले 3-4 सालों में हमारे बार बार आग्रह के बाद सरकार ने अब व्यापारियों की तरफ देखना शुरू किया है, जो बहुत अच्छा इंडिकेशन है। मैं निश्चित रूप से जितनी बातें आपने कही है, मैं सारी बातों का समर्थन करता हूं। और मेरी अपील आपसे भी, आप जैसे लोगों से भी है, मेरी अपील सरकार से भी है कि क्यों ना हम सब मिलकर के कोलैबोरेटिव एक कंसोर्टियम बनाए, और वो कंसोर्टियम देश की इकोनॉमी को आगे कैसे ले जा सकता है, हमारे सिस्टम में जहां जहां लूपहोल है उनको हम कैसे प्लग कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहता हूं, अगर देश में कोई भी व्यक्ति टैक्स इवेजन करता है, अगर देश में कोई भी व्यक्ति
लॉ के खिलाफ काम करता है। अगर देश में कोई भी व्यक्ति और किसी ऐसी एक्टिविटी करता है जो लीगली टेरेबल नहीं है, तो उस व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो देश का व्यापारी हो या फिर विजय माल्या या कोई बड़ा कॉर्पोरेट क्यों ना हो। अल्टीमेटली वी ऑल पीपुल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मदरलैंड, और हम सब व्यापारी, हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोग, और कोई किसी के बिजनेस पर एनक्रोच ना करे। जैसा आज हमारे बिजनेस के ऊपर ई कॉमर्स कंपनियों ने एनक्रोच कर लिया, आज 1 लाख से ज्यादा दुकानें इनकी वजह से बंद हो गई हैं हमारी। आज वो खाना खा रही है नहीं खा रही है, किसी सरकार को चिंता नहीं है इसकी। तो एक होमोजीनियस एटमॉस्फेयर हम लोगों को देश के लिए बनाना होगा। मैं आज इस टॉक के माध्यम से ये बात जरूर यहाँ रखना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर के, हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबको मिलकर के कोई ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिससे हमारे बीच में जो लोग खराब काम कर रहे हैं उनको हम सिस्टम से वाइप आउट कर सके, और अच्छा सच्चा बिजनेस हम हिंदुस्तान में डेवलप कर सके। हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें उसके ऊपर भी चर्चा करनी होगी। हमारे एक्सपोर्टर्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें उसको भी देखना होगा। अगर हमें इंपोर्ट्स पर कुछ ड्यूटियां लगाने की जरूरत है, तो इंपोर्ट्स पर ड्यूटियां लगनी चाहिए, क्योंकि यदि हिंदुस्तान का स्मॉल मैन्युफैक्चरर मर गया तो फिर अल्टीमेटली हम उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पाले में चले जाएंगे, हमें फिर दूसरे देशों से चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के ये कोई बहुत छोटा विषय नहीं है। इस पूरे एमएसएमई का विषय जरूर इंपॉर्टेंट है, बस नॉट ओनली एमएसएमई, हमको इसको एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना होगा। और मुझे उम्मीद है कि जब हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो हालात भी बदलेंगे, सूरत भी बदलेगी, और प्रधानमंत्री ने जो टारगेट रखा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा भी होगा। मुझे आपने अपनी बात कहने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार और सभी लोग। थैंक यू प्रवीण जी, थोड़ी देर और बने रहिएगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम टेकअप कर लेंगे। पर आपके जो इश्यूज हैं आपने बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही इंटेलेक्चुअली उन सबको प्रेजेंट किया। हमें पूरी तरह से पहले से ही पता है कि आपका पैशन ट्रेडिंग सेक्टर के लिए विजिबल है, और आपका नॉलेज लेवल और आपका एक्सपीरियंस इस सेक्टर के साथ इतना डेप्थ है, इतना डिटेल्ड है कि उसके बारे में मैं क्या कहूँ। मतलब आपने खुद ही अपने एड्रेस में बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, और मुझे खुशी है कि आपने मेरी बातों को भी सहमति जाहिर की। पर मुझे एक्चुअली जो फिगर्स आपने दी हैं उससे और अधिक विश्वास हो रहा है, और ये कन्विक्शन हो रहा है कि इस सेक्टर को और आगे ले जाने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। अब हम 2.5 करोड़ की जगह 8 करोड़ एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस 8 करोड़। जी सर, जी सर। और 40 करोड़ एम्प्लॉइज और 115 लाख करोड़ टर्नओवर। आई थिंक, मेरा ख्याल है इसका तो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही सब्सटैंशियल होगा अगर रियल तरीके से इसको वर्कआउट किया जाए। और 28 लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, ये एक एरिया है जिसपे बहुत काम करने की आवश्यकता है, इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि आपके एफर्ट्स और हम लोगों के ज्वाइंट एफर्ट्स से ये सारी दिक्कतें धीरे धीरे ठीक होंगी। और जिस तरह से आपने बताया कि कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की जरूरत है, तो कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म में मैं समझता हूं कि आज का एक पहला एफर्ट है, हम लोगों ने पावर टू एसएमई ने जो शुरू किया है, इसके ऊपर काम करने के लिए हम आगे इसी तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या कॉमर्स मिनिस्ट्री हो या एमएसएमई मिनिस्ट्री हो। और उनके सामने ये इश्यूज को जब टेकअप करेंगे तो नेचुरली वो भी सहमत होंगे कि इतना बड़ा सेक्टर है तो इसको तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। चाहे वो डिजिटाइजेशन से एम्पावर करने की बात हो, चाहे वो उनकी जो ट्रेजरी है, इतने लाइसेंसेज और जीएसटी की प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको रिजॉल्व करने की प्रॉब्लम है। तो ये सारे इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक इशू आपने जो रेज किया डिलेड पेमेंट वाला, वो भी एक बहुत ही पुरानी समस्या बनी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते, जबकि गवर्नमेंट भी अवेयर है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसके बारे में चर्चा की थी लास्ट ईयर। और फर्स्ट पैकेज आपको ध्यान होगा जिसके अंदर उन्होंने अनाउंस भी किया था कि सारे पेंडिंग पेमेंट्स 45 डेज के अंदर हो जाएंगे, पर यह समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके बारे में एक्चुअली नए मैकेनिज्म लाने की भी जरूरत है। डिजिटल मीन्स जो हमारे आ रहे हैं,
क्योंकि उसके थ्रू मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। अभी एक नया मैं देख रहा था मैकेनिज्म, डिजिटल मैकेनिज्म आया है IOUX के नाम से। IOUX एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार बायर और सेलर दोनों को ये गारंटी हो जाती है कि वो टाइमली पेमेंट करेंगे, और टाइमली पेमेंट से बायर को ये पता रहता है कि कौन सी डेट को पेमेंट करना है, सेलर को ये मालूम है कि किस तारीख को पेमेंट मिलना है, और उससे अगर वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे उसकी डिस्काउंटिंग और क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेल की जा सकती है। तो ऐसे माध्यम और डेवलप करने की आवश्यकता है, पूरे कंट्री में ले जाने की आवश्यकता है। और ट्रेडर्स, ट्रेडिंग कम्युनिटी, जिनको मेरे ख्याल सबसे लास्ट में क्रेडिट मिलता था, सबसे लास्ट में, तो उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। अब मुझे लगता है कि प्रायोरिटी सेक्टर में आने से और थोड़ा MSME सेक्टर की जो एक एम्पैथी है वो ऐड होने से तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, परंतु ये ग्राउंड पे कितना वर्कआउट होता है ये देखना पड़ेगा हमें। हम इसके ऊपर ग्राउंड से फीडबैक भी लेके कि ट्रेडर्स, ट्रेडिंग सेक्टर में जो लोग बैंकों के पास जा रहे हैं उनको ये वाकई इसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसके ऊपर टेकअप करेंगे। मैं प्रवीण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग जब भी हम करें तो थोड़ी सी फीडबैक भी हो ट्रेडिंग सेक्टर के से आई हुई। हमें पता लगे कि 8 लोगों ने अप्लाई किया, तो उन 8 लोगों को क्या मिला लोन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर का एक एडवांटेज ये है कि उसमें कंसेशनल इंटरेस्ट है। भाई क्रेडिट तो मिल जाएगा आपको 12% 13% पे मिल जाएगा, परंतु प्रायोरिटी सेक्टर में लाने का मतलब है कि उसका 9% 10% मिलना चाहिए, 2-3% का कंसेशन होना चाहिए। तो ये एक एडवांटेज है, और फास्टर क्रेडिट अप्रूवल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जैसे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, अब क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 2 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी देती है। प्रवीण जी आपकी नॉलेज में होगा जरूर, तो वो फैसिलिटी इनके ऊपर भी एक्सटेंड की जाए। भाई 2 करोड़ आप उधर दे रहे हैं माइक्रो और स्मॉल सेक्टर के लिए और प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, तो जब प्रायोरिटी सेक्टर में ट्रेडर्स आ गए तो इनके ऊपर भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके लिए चाहे क्रेडिट गारंटी फंड को थोड़ा एक्सपैंड करना पड़े, थोड़ी सी उसकी फंडिंग और करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो ये एरियाज हैं जो पूरी तरह से हम मिलके साथ काम कर सकते हैं। एक एरिया जो प्रवीण जी थोड़ा सा आपके व्यू में चाहूंगा वो है ई कॉमर्स के ऊपर जो नए रूल्स आए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री ने, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो अभी नोटिफाई किए हैं, अभी ड्राफ्ट रूल्स हैं वो, उसके ऊपर आपका क्या व्यू है कि उससे ट्रेडिंग सेक्टर किस तरह से इफेक्ट होगा, और क्या उन रूल्स में अमेंडमेंट की या करने की जरूरत है? नहीं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने सवाल पूछा। ये जो नए रूल्स आए हैं, मैं ये कहूँगा कि रूल्स नहीं है, these are guiding principles for conducting e-commerce business in India, either by a foreign funded company or a indigenous Indian company or anybody else, any entity involved in e-commerce. Number one. Number two, these rules are not applicable only to goods, but also any kind of services that are being rendered through any kind of e-mode will have to obey these rules which have come under Consumer Protection Act. Yes, Consumer Protection Act. जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा वाइड है, उसमें चाहे ट्रैवल एजेंसी की कंपनी हो, चाहे ओला उबर हो, चाहे अदरवाइज कोई भी एग्रीगेटर हो जो सर्विसेज को रेंडर कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स, वो सारा इसके अंदर आने वाले हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये तो खाली जो बड़े ब्रांड है केवल उन्हीं के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। अगर 4 लोग भी मिलकर के कोई अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रहे हैं तो उन सबको इसमें आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत राइट स्टेप है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि फ्यूचर में ई कॉमर्स इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल in supplying the goods directly at the doorstep of the consumer. तो इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से सब पर अवेलेबल है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक डिस्टिंक्शन जरूर रखनी पड़ेगी, जो अभी थोड़ा सा कहीं ड्राफ्ट रूल्स में जिसकी थोड़ी कमी मैं देख रहा हूं, कि मार्केट प्लेस की जो डेफिनेशन है, तो मार्केट प्लेस, ये मार्केट प्लेस वर्ड हिंदुस्तान में ही आया और पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। हमारे यहाँ इसलिए आया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेंशन ये थी कि
हम अपने जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको इसमें बचाएं। तो मार्केट प्लेस को खाली उन्होंने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की आज्ञा दी, उनको अपना सामान बेचने की अनुमति नहीं दी। जबकि हम सब ने देखा कि पिछले किस तरीके से अमेजोन ने क्राउडटेड और अपैरी और न मालूम कितनी कितनी कंपनियां बना करके और उसको अवॉइड किया। फ्लिपकार्ट ने भी ऐसे ही किया, या और भी सब कंपनियों ने ऐसे ही किया। तो एक तो वो सब चीजें इससे रुकेंगी, लेकिन दूसरी बात, इंडियन कंपनी, मैं क्योंकि हिंदुस्तान का हूं, तो मैं चाहे इन्वेंट्री करूं या मैं मार्केट प्लेस करूं या मैं कुछ भी करूं, कम से कम मुझे इस बात की स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए। यह पॉइंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसिंग है। अगर आपने फॉरेन कंपनी को और इंडियन कंपनी को एट पार रख दिया, मेरे भारतीय मार्केट को और उनको एट पार रख दिया, तो नेचुरली उनके पास तो इन्वेस्टमेंट की ताकत है, वो तो मुझे टिकने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना होगा, क्योंकि जो मैं जितना व्यापार कर रहा हूँ, मेरा पैसा हिंदुस्तान में रहने वाला है, उनका पैसा हिंदुस्तान से बाहर जाने वाला है, मेरा डाटा हिंदुस्तान में रहे। तो ये डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं हमें मेंटेन करनी होगी। लेकिन बाई एंड लार्ज जो रूल्स आए हैं, वो हम सब लोगों के जो पिछले 4-5 साल के बिटर एक्सपीरियंसेस है, गुड या बैड एक्सपीरियंसेस है, उनको ध्यान में रख करके बनाए। एंड आई फुल्ली एंडोर्स एंड सपोर्ट दीज रूल्स विद मिनिमम डिजायर्ड अमेंडमेंट्स, और फिर उसके बाद इसको जल्दी लागू किया जाए, ताकि देश में ई कॉमर्स के जरिए कोई भी कंज्यूमर कोई भी सामान मंगाए तो उसको चीटिंग का डर न रहे। जी नहीं, बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा मेंशन किया, वो है कि इंडिजिनस ई कॉमर्स प्लेयर जो हैं, क्योंकि उसमें छोटे लोग भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उनके बहुत बड़े बड़े मार्केट प्लेस हों, वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसे आपको मैं उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए हम करोड़ बाग के 20 व्यापारी हैं जी, एक ही तरीके का या अलग तरीके का ट्रेड करते हैं। हमने 20 व्यापारियों ने तय किया कि हम अपना काम ई कॉमर्स के माध्यम से करेंगे। हमने एक छोटी सी वेबसाइट लॉन्च कर दी। अब अभी जो नियम है उसके हिसाब से हम जो 20 व्यापारी हैं, हम अपना माल तो बेच ही नहीं सकते उस पर। अरे अगर हम अपना माल नहीं बेचेंगे तो हम दूसरे का क्यों बेचने, थोड़ी हमने बनाया पोर्टल। जी जी, तो इतनी स्वतंत्रता यदि आप हमें नहीं दोगे कि मैं अपने ही, या जो मान लीजिए मैं इंडिविजुअल, अपनी कंपनी की मेरी वेबसाइट है जी, तो इस रूल के मुताबिक तो मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट पर अपना माल नहीं बेच सकता। जी, तो अगर मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट पर अपना माल नहीं बेचूंगा तो पड़ोसी थोड़ी बेचूंगा जी मैं सामान। बिल्कुल तो बिल्कुल, इस डिस्टिंक्शन को हमें कहीं ना कहीं रूल्स के अंदर लाना जरूर होगा। तो ये आ गया तो फिर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ई कॉमर्स बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा और हम सब लोग उसके साथ फ्लोरिश होंगे। जी। बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है। मेरे हिसाब से इसके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन जो है वो एक थ्रेशोल्ड फिक्स करने का है, कि आप कोई एक लिमिट फिक्स कर दीजिए, जैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, कि भाई 250 करोड़ तक के ट्रेडिंग सेक्टर को हम इस रूल से या इस जो रिक्वायरमेंट्स है उनसे एग्जेप्ट करते हैं। उसके ऊपर के बड़े मार्केट प्लेस मॉडल, उससे बड़ी जो फॉरेन की कंपनीज हैं या डोमेस्टिक कंपनी बड़ी वाली भी हो सकती है, अब फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर वो एप्लीकेबल होता है तो होने दीजिए। पर हमारे ट्रेडर्स जो छोटे हैं, जिनकी टर्नओवर एक अप टू एक लिमिट है, आप जो भी लिमिट फिक्स करना चाहें, वो चाहे 100 करोड़ करें, 50 करोड़ करें, या मैं तो कहता हूँ 250 करोड़ तक भी हो सकती है। तो उसके लिए ये जो मार्केट प्लेस और इन्वेंट्री का मिक्स मॉडल है, ये अलाउ करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि अपना माल अगर नहीं बेच सकते अपने ही प्लेटफॉर्म पे, तो किसका माल बेचेंगे। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कंप्लायंसेस की जो रिक्वायरमेंट आई है, अब वो छोटे छोटे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे रजिस्ट्रेशन कराना डीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, ग्रीवांसेस ऑफिसर को अपॉइंट करना, कंप्लायंसेस ऑफिसर को अपॉइंट करना। अब एक एक छोटा व्यापारी अगर अपने पोर्टल को चला रहा है, अपनी वेबसाइट को, तो वो कहाँ से ग्रीवांसेस अफसर अपॉइंट करेगा और कहाँ से कंप्लायंस अफसर अपॉइंट करेगा। क्यों रजिस्ट्रेशन एक और बढ़ जाएगा, मिनिस्ट्री के साथ रजिस्ट्रेशन कराना। तो ये भी एग्जेम्पशन देना जरूरी है। इस कुछ एक लिमिट तक कर दीजिए आप, छोटे वालों को तो कम से कम 100 करोड़ तक वालों को तो एग्जेम्प्ट कर दीजिए। उसके बाद या इवेल्युएट कर दीजिए, मैं ऑफ हैंड बता रहा हूँ 100 करोड़, ताकि मेजॉरिटी जो इंडिजिनस प्लेयर हैं, इंडिजिनस ट्रेडिंग कम्युनिटी है, वो एग्जेम्प्ट हो जाए। प्रवीण जी। सर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि
आज जिस तरीके से ई कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है जी उसमें सर एक बात जरूर है कि चाहे कोई व्यक्ति छोटा काम कर रहा है बड़ा काम कर रहा हो, सरकार को यह अधिकार तो जरूर है कि उसे पता रहे कि फलाने स्टेट में कितने व्यक्ति ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। जी तो जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, मेरा अपना अपना व्यू ये है कि रजिस्ट्रेशन तो हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो छोटी है बड़ी है सबका होना चाहिए। सरकार के पास वो डाटा होना चाहिए कि कितने लोग कर रहे हैं। बट फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे आपने कंप्लायंस ऑफिसर का कहा, आपने ग्रीवांस ऑफिसर का कहा, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जिसकी टर्नओवर मान लीजिए 100 करोड़ से ऊपर है या 50 करोड़ से ऊपर है, ये तीन कंडीशन उस पर लागू होंगी, या 200 जो भी एक थ्रेशोल्ड बना करके। लेकिन रजिस्ट्रेशन में यहाँ तक सवाल है, क्योंकि इसमें कई बार क्या हुआ है कुमार साहब, फ्लाई बाई नाइट बहुत सारे लोग आ गए जी और वो कंज्यूमर्स को चीट करके भाग गए, जी क्योंकि ई कॉमर्स के लिए रजिस्ट्रेशन तो लेना कहीं जरूरी नहीं था। तो किसी ने वैसी एक वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट बना दी, वहां पर कुछ प्रोडक्ट पता नहीं किसके दिखा दिए, लोगों से पेमेंट ले ली और उसके बाद में उस वेबसाइट का पता ही नहीं चला, फ्लाई बाई नाइट बहुत सारे आ गए। तो अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो उसको अपनी केवाईसी मत देनी पड़ेगी, तो कम से कम वो भाग नहीं सकता, तो कंज्यूमर के साथ कभी धोखा नहीं होगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन को तो मैं मैंडेटरी मानता हूं, लेकिन जो बाकी की कंडीशन है उसमें छोटे व्यापारियों को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। हाँ, उनसे ये कहें कि आप एग्जम्प्ट है, बट आपको अपना एक कस्टमर केयर नंबर जरूर देना होगा, ताकि अगर कंज्यूमर को कोई ग्रीवांस है तो आपके कस्टमर केयर नंबर पर फोन करो, और अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर देन कंज्यूमर हैज एवरी राइट टू गो टू द ग्रीवांस ऑफिसर, जो उसको कहे कि भी फलाने व्यापारी ने मेरे साथ चीटिंग करी है। आई थिंक in that way not only the traders but we will be able to protect the right of the consumer also. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं, मेरा ये भी व्यू था कि चूंकि अब इनको एमएसएमई के अंदर शामिल किया गया है 2.5 करोड़ लोगों को, तो ये 2.5 करोड़ लोग तो इन एनी केस उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर कवर होंगे और ये रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन का कराएंगे। तो ये हो सकता था कि एक सोल्यूशन की जो लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको दोबारा मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराने से एग्जेम्प्ट किया जाए, और बाकी जो लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का नहीं करा रहे वो डीपीआईआईटी में रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि ये हो सकता है दोनों कोऑर्डिनेशन से टोटल नंबर गवर्नमेंट के पास मिल जाए। Here I agree with you. I fully agree with you. Yes. तो काफी चीजें निकल के आई। खंडेलवाल साहब, बहुत बढ़िया डिस्कशन, और मुझे लगता है कि इसमें कई जो सजेशंस आए हैं हम लोग मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट में भी चर्चा करेंगे और उनसे भी बात करेंगे किस तरह से हम इनको 1 by 1, ये तो हम लोगों ने तो मेरा ख्याल है आज 8-10 सजेशन दे दिए, इसमें से एक एक दो करके इम्प्लीमेंट होते जाएंगे, तो मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर या जितनी जल्दी हो सकता है ट्रेडिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आई थिंक बहुत ही बड़ा एक बेनिफिट हो जाएगा, और इसमें आपके एफर्ट्स और आपके योगदान को पूरी सेक्टर इसको सराहेगी फॉर ऑल टाइम टू कम। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, बट जुमेर प्रवीण जी 2 मिनट और रुकिएगा। Zumair Sodamini, is there any questions from the audience? Sir, I would like to thank you both for such a great and insightful webinar. हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है with the inclusion of traders and retailers in the MSME sector आपके आज के वेबिनार से। सर, एक क्वेश्चन जो बड़ा कॉमनली उठा है MSME का जो कंसर्न है, they have been very anxious that the inclusion of retailers and traders under MSME sector will lead to dilution of benefits. इसके बारे में आपकी क्या सोच है? खंडेलवाल जी, प्रवीण जी, हेलो प्रवीण जी, आप हैं साथ में? Let me answer this till he rejoins. I think he's got some phone. Let me tell you this concern expressed by the industry chambers and MSME associations to some extent is an apprehension that credit allocation meant for priority sector will get diluted
because in any case there is a very limited availability of priority sector credit for the MSMEs, and when 2.5 crores, 25 million traders also get joined, so it further the pie will get further reduced. So that is why, in fact, we were talking in this webinar, you would have heard that the pie needs to be increased. And this is the only area where the government has included the micro and this trading sector under the MSME definition. As such, other schemes are not affected as of now. Right. So, Damini? So thank you so much, sir, for that explanation and such an extensive conversation today. I would like to thank all our participants who joined us, and also Mr. Khandelwal for his esteemed opinion. I hope to see you all at the next webinar. Thank you all for joining us today. Good afternoon. Thank you, Sodhamini. Thank you, Zumair. Thank you, Khandelwal ji. Thanks a lot. Okay, bye.